Hello everyone. In this session, we are going to discuss priorities from 6th to ninth. This is going to our last session in the budget series. My name is Kamesh Mansoria and I welcome you again in the journey of UPSC Civil Services examination with IAS Namha. So, our sixth priority is energy security. One thing which you need to know is uh, citing all these 4 points, 1, 2, 3, and 4, what we can infer is we are very much focused towards green energy, right? Through all these 4 points, we can say that we are very much focused towards green energy. One may say that, sir, there is a thermal power plant and you are saying about green energy. Yes, yes, I will show you how it will contribute to our green energy. ठीक है देन सर व्हाट आर आवर टारगेट्स देखिए अगर हम टारगेट्स की बात करें तो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू बिकम नेट जीरो बाय 2070 राइट नेट जीरो बाय 2070 and second target is to have a production capacity of around 500 gigawatt of energy through non-fossil fuel based plant by 2030 right but हुआ क्या है in between in from 2021 to 2023 what I can say is we can just add 23 gigawatt of production capacity in our bucket through these non-fossil fuel based energy. What I mean is during this during this tenure मेरी जो इकोनॉमी है वो केवल 23 गीगावाट ऑफ एनर्जी की कैपेसिटी ही ऐड कर पाई है जबकि मेरा टारगेट क्या है मेरा टारगेट है कि मैं 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकूं बाय 2030 दिस इज 30 नॉट 50 बाय 2030 नाउ मूविंग अहेड देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या दिया गया है. Talking about point number one, which is government is talking about private sector in nuclear energy. So what does it mean? Government is saying that we will partner with private sector in nuclear energy and set up Bharat Small Reactor. Wait, sir, what is Bharat Small Reactor? देखिए भारत स्मॉल रिएक्टर इज नथिंग बट स्मॉल साइज और वी कैन से अ कॉम्पैक्ट nuclear reactor, a compact traditional nuclear reactor. These nuclear reactors have a capacity which is equivalent to one third of what a traditional nuclear reactor can produce. ठीक ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत स्मॉल रिएक्टर ये अपने वन थर्ड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसके बराबर ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर. ठीक है ये देख लिया सर हमने. तो व्हाई वी आर वेरी मच फोकस टुवर्ड्स दिस सर वेरी एनर्जी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पैक्ट साइज. ठीक है ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इनका साइज कॉम्पैक्ट है प्लस बिकॉज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट इन नेचर and because of their compact size we can use them in remote areas also. In remote areas also not to forget that these nuclear reactors can be used by large industries for their energy requirement. Large industries like steel, large industries like cement. Okay, that's why government is saying that now from now we will partner with private sector in case of nuclear energy. But what we need to understand is that if we partner with private sector, then we should or we need to regulate this sector also. Second is pumped storage policy. ठीक है गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी. बात आती है पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी से सर होगा क्या. देखिए थ्रू पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी वी कैन स्टोर एनर्जी राइट वी कैन स्टोरेज ऑफ एनर्जी फर्स्ट स्टोरेज ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी. ठीक ये जो पॉलिसी है इसके थ्रू हम लोग अपनी एनर्जी प्रोडक्शन का ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ये दोनों चीजें कर सकते हैं. सर कैसे बात आती है कैसे. देखिए पंप्ड स्टोरेज जो प्लांट होते हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन हाइड्रो एनर्जी. हाउ सर व्हाट हैपेंस दिस इज आवर reservoir वाटर reservoir using surplus energy if we just lift this water to a greater height and using surplus energy.
अब बात आती है सरप्लस एनर्जी कहाँ से आ गई सर एकदम से। What happens in case of for example solar energy during daytime during daytime during daytime we have surplus of energy। ठीक है, होता क्या है जब सोलर एनर्जी से हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं तो दिन के वक्त बिकॉज ऑफ सोलर लाइट we have surplus of energy, and if this energy is not stored and if this energy is not stored then this energy gets wasted। ये एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। एंड फॉर दिस वी यूज स्टोरेज पॉलिसी और pumped storage plant, and this surplus energy is used for lifting the water lifting the water from its water reservoir to a great height। ठीक है, ठीक है सर, हमने ये तो कर दिया, हमने यहाँ से पंप लगाया और ये पानी जो है वो एक हाइट पर ले जाकर स्टोर कर दिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि when we are in need of energy then we will use the potential energy of this water, we will use the potential energy of this water to generate electricity again through the turbine। ठीक है, थ्रू टरबाइन। तो ये जो पूरा सेटअप है, ये हमने पूरा सेटअप देख लिया किसका, ये है हमारा पूरा सेटअप स्टोरेज, पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स। ठीक है सर, ये हमने देख लिया। देन व्हाट, अब हम बात करते हैं करंटली इंडिया इंडिया हैज अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 3.3 गीगावाट ऑफ पंप्ड स्टोरेज। ठीक है, पंप्ड स्टोरेज की अभी इंडिया में कितनी कैपेसिटी है, 3.3 गीगावाट। But if we see other economies like China, then China has a storage capacity of around 44 gigawatt. That means we should learn from these our neighbors our neighbors on how to go towards green energy। Okay, then what is energy audit? This budget we have seen about energy audit. This budget we are very much focused towards supporting MSME or micro and small industry. If I say, what happens is these small and micro industries do not have sufficient fund to shift towards green form of energy। like जैसे कि बात की जाती है developing economies, and in case of developed economies what is generally assumed that developing economies or least developed economies do not have sufficient fund to move towards greener economy। In the same way micro and small industries are lack do not have sufficient fund, so government is saying that we will help you in moving टूवर्ड्स ग्रीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, गवर्नमेंट बोली कि नहीं, हम आपको क्या करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर सकें। ऑल्सो समटाइम्स दीज एनर्जी यही जो सेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर पॉल्यूटिंग एनर्जी को यूज करते हैं। देन ऑडिट की बात की है सर, इसमें बिल्कुल की है। तो इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे 60 क्लस्टर में, 60 क्लस्टर्स की हम ऑडिट करेंगे, वहां से हमको एक पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर क्लस्टर है वो किस टाइप की एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, व्हाट एनर्जी एफिशिएंसी दे हैव। ओके, देन व्हाट अबाउट एयूएससी थर्मल पावर प्लांट। सर आपने कहा कि ये ग्रीन एनर्जी में सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेट्स सी हाउ। होता क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, ठीक है सर, देख लिया थर्मल पावर प्लांट जनरली ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज सब क्रिटिकल। ठीक है, सब क्रिटिकल। सेकंड वन इज सुपर क्रिटिकल, एंड थर्ड वन इज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। सबसे पहले हम देखते हैं कि एयूएससी का फुल फॉर्म क्या है। एयूएससी का फुल फॉर्म क्या है सर, एयूएससी इज स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। देखिए, अब ये जो थर्मल पावर प्लांट का मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हैज एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 38%, while supercritical thermal power plants have an efficiency of around 41 to 42%, while in case of ultra super we have seen the efficiency of around 46% or more than that। ठीक है, बट करंटली वी हैव एन एवरेज एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 32%। राइट, अभी हमारे पास एवरेज एफिशिएंसी कितनी है, 32% की। एंड बाय यूजिंग AUSC पावर प्लांट्स
by using AUSC power plants, we can increase our efficiency from 32% to 46%. This means reduction in the coal consumption by 11%. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि 11% के आसपास हम अपना कोल कंजम्पशन को रिड्यूस कर देंगे, विच मीन्स अ बेबी स्टेप टूवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी। ठीक है, तो ये भी देख लिया हमने कि इसके थ्रू हम लोग कैसे क्या यूज करना चाह रहे थे। अगेन one more point in case of pumped storage policy. Wait, let me clean this slide. हाँ, पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी की अगर हम बात करें तो कुछ मेन सेंटर्स जो इसके इंडिया में है वो कहाँ पर? सर कहाँ पर है मेन सेंटर्स? मेन सेंटर्स आर इन कड़ाना, राइट? कड़ाना फर्स्ट, सेकंड वन नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, एंड थर्ड वन इज कड़मपराई, कड़मपराई। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? और इट इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, ओके सर। देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये जो पर्टिकुलर योजना है इसके बारे में सबसे पहले बात कहाँ की गई थी? इंटरिम बजट में। ठीक है, इंटरिम बजट में इसके बारे में बात की गई थी और ये बोला गया था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड up to up to 300 units. ठीक है, up to 300 unit. And what happens in this particular yojana is they provide you net metering, they provide you net metering. So what happens, this yojana is for increasing the adoption of rooftop solar. Through rooftop solar, you generate electricity, and excess of this electricity is sent back to DISCOMs through grid connection. ठीक है, आप क्या करते हैं? बिजली को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं थ्रू सोलर, रूफटॉप सोलर, एंड जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो कहाँ जाती है? हमारी डिस्कॉम्स में वापस जाती है। ठीक है, ये देख लिया। अगेन इसके इसके थ्रू हमको क्या देखने को मिलेगा? 300 यूनिट्स तक हम लोगों को मुफ्त की बिजली देखने को मिल सकती है। और ये जो पर्टिकुलर हमारा टारगेट है, हम बात करें टारगेट की, तो प्रधानमंत्री का जो सॉरी इस पर्टिकुलर स्कीम से हम लोग का टारगेट है कि हम 75,000 करोड़ तक का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट वो अपना क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 75,000 करोड़ तक का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपना कम कर सकती है। सेकंड, वी हैड अ टारगेट ऑफ अचीविंग अराउंड 40 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाय 2022, by 2022 from this particular sector, from this particular rooftop solar, from आरटीएस। हम लोग क्या चाह रहे थे कि आरटीएस के थ्रू 2022 तक 40 गीगावाट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन करें, बट टिल नाउ, और वी कैन से टिल अगस्त, वी कुड अचीव ओनली 12 गीगावाट ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज नाउ सेइंग नहीं, अब हम ये क्या करेंगे? ये एक नई योजना लेकर के आएंगे, लोगों के घर में ये सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और उसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इस पर्टिकुलर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ खास बात देखने को नहीं मिली है, थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने को मिल जाता है इंटरिम बजट में भी। ठीक है, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, देन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट 3.4% ऑफ आवर जीडीपी वी हैव targeted about 3.4% of our GDP for infrastructure। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अपना 3.4% के आसपास जीडीपी का लगाए लगाएंगे। और फर्दर 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है वो लॉन्ग टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा किसको? स्टेट्स को, टू फर्दर प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन देयर पर्टिकुलर स्टेट। ऑल्सो दिस बजट टॉक्स अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज। One more thing which is to be discussed here is in the interim budget. In the interim budget, they talked about three major economic railway corridor. Which are they? They are energy, mineral, and cement corridor, port connectivity corridor, and high traffic density corridor. Also, not to forget that all these three are under Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana.
ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। देन देन व्हाट कम्स इज ओके व्हाट कम्स इज एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर, अगर मैं बात करूं एविएशन सेक्टर की, देन व्हाट वी हैव सीन इज वी हैव नियरली डबल्ड द एयरपोर्ट्स इन 10 years. Now our total airport is roughly around 149. अभी हमारे पास 149 के आसपास एयरपोर्ट है, जो कि क्या कर गए हैं पिछले 10 years में डबल हुए हैं। और अगेन वी आर नॉट टू फॉरगेट उड़ान। उड़ान मीन्स उड़े देश का आम नागरिक, फॉर प्रोवाइडिंग 2 and 3 tier cities एयर कनेक्टिविटी। इस उड़ान के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, 2 and 3 टियर जो सिटीज हैं उनको एयर कनेक्टिविटी बेटर तरीके से क्या की है, प्रोवाइड की है। नाउ आवर एट व्हाट वी से प्रायोरिटी इज इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वी हैव सेट अप आवर फंड, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। This fund we have set up for innovation research and development. Also we are focused, or we have a target of achieving 5 times of our space economy in 10 years। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाए, 5 times हो जाए आने वाले 10 years में। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा कहाँ पर है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बात ये भी की गई कि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन कमर्शियल स्केल पर की देखने को मिलेगा, और जिसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल पूल कितना है, 1 लाख करोड़ का। ठीक है सर, ये भी देख लिया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक, बात जब हम नए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की करते हैं तो आपको समझना होगा कि ये जो पर्टिकुलर रिफॉर्म्स की बात की गई है, इसमें कहा गया है कि हम through these reforms what we are targeting of achieving better productivity in case of our factors of production। इसमें कहा गया कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बेटर प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो आपको पता होगा कितने कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर बेटर इन चार फैक्टर्स के बारे में ही बात की गई है। और जब मैं अपने ये जो रिफॉर्म्स हैं उनको डिवाइड करता हूँ, तो मुझे देखने को मिलेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर 3 और 1 more रिफॉर्म, दिस रिफॉर्म पर्टिकुलरली डील्स विद रूरल लैंड और रूरल एरिया, and these two reforms and particularly deals with urban areas। ठीक है, ये कहाँ पर डील करते हैं, अर्बन एरिया में, और ये कहाँ करते हैं, रूरल एरिया में। देन हम देखते हैं कि यूजिंग बट वी आर टारगेटिंग दीज रिफॉर्म्स थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड ऑल्सो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि development of a nation depends upon the development of states। What does it mean? They are trying to say that we are going to achieve these reforms through और with the help of states। What happens is land की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला है कि नहीं, हम आपको क्या करेंगे, हम अपने स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे, और इसके लिए हम स्टेट्स को जो है वो 50 years का इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 50 years का क्या करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, कि वो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह में बेटर तरीके से काम करें। जब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की, तो इसमें कहा गया है रूरल सेक्टर में खास करके कि जो भी हमारे वो है लैंड है, उनको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जिसको नाम दिया गया था भू आधार, जैसे हमारा जन आधार होता है वैसे ही भू आधार लेकर के आए हैं, जिससे क्या हो पाएगा, एक जो पर्टिकुलर लैंड है उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। फिर उसमें क्या किया जाएगा, उस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू दे कैन रिकॉर्ड इट डिजिटली, दे कैन ऑल्सो लिंक इट विद फार्मर रजिस्ट्री और एस्टेब्लिश लैंड रजिस्ट्री। ये जो सारे रिफॉर्म्स जहां पर हम देख रहे हैं, चाहे वो मैप हो, सब डिवीजन, सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन हो, या फिर लिंकेजेस की बात कर रहे हैं हम फार्मर्स रजिस्ट्री की, या फिर हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री, इसका मेन पर्पज है टू मेंटेन द क्रेडिट फ्लो। इसका मेन पर्पज है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर सकें, बेटर क्रेडिट फ्लो ला सकें। देन हमने बात की, ये हमारी बात हो गई लैंड की, और जब हम लेबर की बात करते हैं तो नॉट टू फॉरगेट, इसमें हमने जब लेबर की बात की है तो यहाँ पर हम पिछले बजट के लेक्चर्स में भी देख सकें कि यहाँ पर बात की गई है एम्प्लॉयमेंट की, और यहाँ पर बात की गई है स्किल डेवलपमेंट की। ठीक है, जब बात हम करेंगे कैपिटल सेक्टर की, तो इस बजट में बात की गई है कि हम क्या करेंगे, हम एक फाइनेंशियल सेक्टर विजन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट लेकर आएगी गवर्नमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर विजन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट,
फॉर 5 इयर्स। ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा वो गवर्नमेंट को बताएगा कि आने वाले 5 सालों में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए और आपका पाथ क्या होना चाहिए टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ये बात हुई क्रेडिट को लेकर के। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने देखा ही है कि गवर्नमेंट एमएसएमई वगैरह के लिए क्या क्या कर रही है, स्टार्टअप इंडिया वगैरह ये सब चला ही रही है। फिर हम बात करते हैं कि इस बजट में अगली स्लाइड पर आने से पहले हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। ठीक है ना? कुछ और पॉइंट्स जो कि इस बजट में, इंटरिम बजट में हमको देखने को मिले। सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ, अब हम कैपिटल मार्केट से ज्यादा पैसा उठाएंगे। राइट? मोर रिसोर्सेज थ्रू कैपिटल मार्केट की गवर्नमेंट ने बात की है। और जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्या कर सके, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, स्पेंड कर सके अपने अमाउंट को। बिकॉज ओवर द इयर्स, अगर हम लास्ट 5 इयर्स की बात करें, अगर हम लास्ट 5 इयर्स की बात करें या रफली 3 इयर्स की बात करते हैं, अगर हम लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो हमको देखने को मिलता है कि इंडियन इकोनॉमी ने काफी बेटर परफॉर्म किया। रफली अराउंड 7% के आसपास हम लोग ग्रो किए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ हम कह सकते हैं किसके बलबूते पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लास्ट 3 इयर्स में एक ठीक ठाक तरीके से काम किया है। और इसमें काफी हद तक जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को, जिसने कि कुछ स्कीम्स लेकर के आए, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सपोर्ट टू एमएसएमई। ये जो सारे इनिशिएटिव थे, इनकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने बेटर तरीके से क्या किया है, वर्क किया है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, हम क्या करेंगे आने वाले समय में, कैपिटल मार्केट से ज्यादा रिसोर्सेस उठाएंगे थ्रू बॉन्ड एंड ऑल। एंड उसको हम कहाँ पर चैनलाइज करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। अगेन एक जो देखने को मिला था कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उसकी वजह एक ये भी थी कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, जब लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि प्रॉफिट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। यही एक रीजन था। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे? क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में जो हमारा सीपीआई था, या मैं बोलूं हेडलाइन इन्फ्लेशन, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन की। तो ये मेरा हेडलाइन इन्फ्लेशन में मुझे क्या देखने को मिली है, डिक्लाइन देखने को मिला है, मुझे एक गिरावट देखने को मिली है। ठीक, तो ये हमने बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। अगेन अगर हम बात करें और क्या हमको देखने को मिला, वरीब करने वाली बात क्या थी, अगर इस पर्टिकुलर बजट में या इंटरिम बजट में कुछ ऐसा बोला गया तो वो बात की गई थी एग्रीकल्चर को लेकर के। ठीक, एग्रीकल्चर जो कि रेट ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें एग्रीकल्चर की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो हम देखते हैं कि 2022-23 में एग्रीकल्चर की जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो थी 4%। ठीक, बट इन केस ऑफ 2023 to 2024 एग्रीकल्चर की रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली 1.8%। तो फर्स्ट एक, हाँ, एक जो मुद्दा है वो एग्रीकल्चर का है। और दूसरा हम देख सकते हैं टूरिज्म से रिलेटेड। टूरिज्म का पता कैसे चलता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? टूरिज्म का पता चलता है कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल। और यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि हाँ, ड्यूरिंग 23-24 हम लोग टूरिज्म में भी अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 22-23 में, अगर मैं बात करूं 22-23 में, तो टूरिज्म में जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो मेरी थी लगभग लगभग 14%, which fall which fall to 6.3% in case of 2023 to 2024। तो ये जो एक पर्टिकुलर सेक्टर देखने को मिला सर्विस सेक्टर में, यहाँ पर हम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एंड एग्रीकल्चर में हम लोग डिवास्टेटिंगली बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। फिर बात आती है कि सर और भी कुछ है इंटरिम बजट से रिलेटेड। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, देखिए ये बजट की लास्ट सीरीज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ फैक्ट्स भी याद रखें। लास्ट 5 इयर्स में हमारा ग्रॉस एनपीए क्या हो रहा है, लगातार डिक्लाइन कर रहा है। एंड करेंटली इट इज अराउंड 3.2%, विच इज अ गुड साइन। ठीक है ना, विच इज अ गुड साइन। तो जब क्रॉस एनपीए के बारे में बजट में बोला है तो ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप बैंकिंग वाले पोर्शन में, खास करके बेड बैंक्स पर ध्यान दें। सरफाईसी एक्ट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। देन फोकस होना चाहिए आपका बेड बैंक
या पारा बैंक भी आप इसको बोल सकते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इस बजट में अच्छे से बात की गई है और हम यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। फिर अगर लीकेजेस की बात की थी कि हमने अभी देखा कि हमारे जो लीकेजेस हैं उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। लीकेजेस इन केस ऑफ किसमें फाइनेंस की हम बात करें, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू कितने अकाउंट्स की बात की है बजट में बात की कि लगभग 50 करोड़ के आसपास अकाउंट्स खोले गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना में। और इसमें मेजोरिटी ऑफ जो अकाउंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं वुमेन को। 55% ऑफ अकाउंट्स बिलोंग टू वुमेन। And then through these Jan Dhan account, we are successful in restricting लीकेजेस। और हमने यहाँ पर अपना लगभग लगभग 2.7 लाख करोड़ के आसपास का क्या किया है, 2.7 लाख करोड़ रुपीस को सेव किया है फ्रॉम लीकिंग। ठीक है, ये भी एक फैक्ट था जो आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। हाँ, तो हम अपने बजट को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो 2021 के मेंस में पूछा गया था। मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को करें। हमने ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने सीरीज में। बात करते हैं सर, क्वेश्चन है क्या। दिस क्वेश्चन इज अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट। यहाँ पर कीवर्ड्स हैं कैपिटल बजट एंड रिवेन्यू बजट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट। ठीक, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन में दिक्कत नहीं जाएगी। प्रॉब्लम यू मे फेस प्रॉब्लम वाइल राइटिंग कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आपको थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। वो कैसे, वो हम बताएंगे। देखिए, कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट के बारे में इसमें डिफरेंस पूछा है तो याद रखिए, जब भी डिस्टिंग्विश करके कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आप उसको बेटर होगा कॉलम के फॉर्म में लिख दें। कहाँ गए, ठीक, आप क्या करें, उसको कॉलम के फॉर्म में लिखें। यहाँ पर बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैपिटल बजट एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिवेन्यू बजट। ठीक, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपका इंट्रोडक्शन सिंपली स्टार्ट होना चाहिए आर्ट। आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for annual financial statement which is called budget, and this budget has two basic accounts, capital budget and revenue budget। देखिए, होता क्या है जब भी हम एक बेटर फ्लो, एक जो टर्म है फ्लो, कि आपके आंसर राइटिंग में फ्लो होना चाहिए, है ना। तो जब आप इंट्रोडक्शन से बॉडी में स्विच करें, यहाँ पर एक फ्लो देखने को मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने रैंडमली स्विच कर दिया। तो बेटर जो थंब रूल है वो ये है कि जब आप इंट्रोडक्शन में एंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी एंडिंग लाइन होनी चाहिए वो आपकी बॉडी की फर्स्ट लाइन से क्या करना चाहिए, कनेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, उस और इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप लास्ट में, इंट्रोडक्शन के लास्ट में कोशिश करें कि ये लिखें कि दिस द बजट हैज मेनली टू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिवेन्यू अकाउंट। फिर जब हम अपनी बॉडी पर आएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं वहां पर, डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड रिवेन्यू अकाउंट। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक फ्लो देखने को मिलेगा। तो ये आप इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा लिखेंगे। बॉडी के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स डिस्क्राइब करने हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रेवेन्यू अकाउंट अगेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पर रिसिप्ट में क्या क्या फॉर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर में क्या क्या फॉर्म होगा कैपिटल अकाउंट के, सेम गोज हियर ऑल्सो। तो बॉडी अगेन आप लिख सकते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है कंक्लूजन। कंक्लूजन में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आप ये आंसर लिखें तो याद रखें यहाँ पर बात की है कैपिटल अकाउंट और रिवेन्यू अकाउंट की। ठीक है, आप लिखते लिखते कहीं ये ना लिख दें कि बजट के बारे में ना लिख दें एज अ होल। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं कि हाँ, बजट इज लाइक द passbook of our account, which acts as a tool for economic development, and we should also focus on the recommendation provided by NK Singh committee and on the recommendation of the FRBM Act। आप अगर ऐसा कुछ करके बजट इस आंसर का कंक्लूजन लिखते हैं तो वो मेरे ख्याल से उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कैपिटल अकाउंट की बात नहीं की, कंक्लूजन आपने यहाँ पर रिवेन्यू अकाउंट की बात नहीं की, जिसके बारे में खास करके पूछा गया था। तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप लिख सकते हैं बजट इज लाइक द पासबुक ऑफ द पासबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वेयर वेयर कैपिटल अकाउंट इज
where capital account is focused more, and we should focus more on capital account while while giving sufficient allocation to revenue account also. इन शॉर्ट मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आप जब आंसर लिखें तो वहां पर ये बताएं कि हमको करना क्या है कैपिटल अकाउंट के साथ और रिवेन्यू अकाउंट के साथ। ठीक है, तो आज इसको यहीं एंड करते हैं। आप ये आंसर मुझे अपना टेलीग्राम चैनल पर लिख करके सेंड कर सकते हैं, मैं इसको वहां पर आपके साथ आपके आंसर को इवेल्युएट कर दूंगा, हमारी टीम आपके आंसर को इवेल्युएट करेगी। थैंक यू। ये बजट की सीरीज को आज यहीं एंड करते हैं। हैव अ गुड डे। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है और ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप यहाँ पर जाकर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए। थैंक यू।